जो होगा वो यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्रेशर हम यूज़ करते हैं उनका फंक्शनिंग को समझना, और उसके साथ साथ जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली स्टार्ट, व्हाट इज कंप्रेशर? Compressor is a device which converts the pressure energy with the application of electricity or any other medium of power. So that here it is discussed that compressor is a device in which used to increase the pressure of air low pressure to high pressure by using some external energy. Different uses this is discussed in this particular slide, but we have discussed about that most of the compressor as a classification, that compressor is classified as the positive displacement and continuous flow. Positive, and that is on the basis of displacement. And we have discussed about what is the positive displacement. When the all the charge, all the substance which is available in the piston or cylinder or particular area, entire area, that can be fully finished in the output, that is the positive displacement. that is समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे इन कोई भी ऐसा पार्ट जो को पूरा का पूरा जो इनपुट है उसको आउटपुट में लेके जा रहा है विदाउट एनी, उसमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा है, तो इसे कंप्रेशर को हम कह रहे हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। पिस्टन जो वर्क कर रहा है वो पूरा का पूरा पिस्टन जो वर्क करेगा वो सीधा सीधा कन्वर्ट होकर आउटपुट के फॉर्म में आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको डेफिनेशन से भी हम बता सकते हैं, ऑपरेट द ट्रैपिंग ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर एंड फेसिंग इनटू द स्मॉलर वॉल्यूम। लाइक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो मोस्टली जो रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी कंप्रेशर की हम बात करते हैं। रेसिप्रोकेटिंग में नॉर्मली मैकेनिकल टाइप का कंप्रेशर हम यूज़ करते हैं। रोटरी में बहुत सारे हैं, स्लाइडिंग बैन है, लिक्विड पिस्टन है, हेलिकल है, लैप्स है, स्क्रू है, एंड देन द कंटिन्यूस फ्लो की जब मैं बात करता हूँ, डायनेमिक एंड इजेक्टर टाइप। डायनेमिक की जब मैं बात करता हूँ, रेडियल सेंट्रीफ्यूगल, मिक्स्ड एंड एक्सियल। सो बेसिकली जो क्वेश्चन अराइव हो सकता है, व्हाट इज द कंप्रेशर एंड व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कंप्रेशर। नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। According to this, different type of compressor we have shown, that is a screw type of compressor, uh, in which the input and output, here it is a out gas outlet, here it is a inlet, but the cavity, this is a screw is moving in round in a screw pattern, that air cavity can be filled and work is done, that is available in the output. And second one is, that is a reciprocating. Everyone is known that reciprocating compressor, it is much similar to the engine, reciprocating engine. Here it is a V type of reciprocating engine, where the three cylinder are used. So that it is a reciprocating type of compressor. This is also a one type of compressor. Basic terms, basic definitions are of the compressor. Compression ratio, everyone is known that ratio, how much amount of you have compressed, that particular compressor is known as compression ratio. It is defined as a ratio of volume of air before the compression to the volume of after compression. That next definition है compressor capacity. It is a quantity of air actually delivered by the compressor in meter cube per minute or meter cube per second. That means in case we have operating on one particular compressor, that one particular minute or particular second, how much amount of discharge that will be available, how much amount of air can be delivered, that is a compressor capacity. Free air delivery, it is the volume of air delivered by the compressor under the compressor intact condition. Basically it is a intact condition, that means available condition are the temperature and pressure. On the basis of temperature we have discussed, that is a free air delivery. Soft volume, it is a basic volume displaced by the piston, and that means the piston actually moved bottom dead center to top dead center or left to right, that is a soft volume.
Next, that is the clearance volume. It is a defined between the total volume and the soft volume. Basically, it is a gap remaining between the piston head and the cylinder head when at the top of the center. So it is a basic difference है जो हम बात कर सकते हैं कि जो soft volume हमारा जो होता है piston का with the help of okay, for assume we have making that particular piston. This is a piston, and this volume is known as soft volume, and this volume known as clearance volume. The remaining volume that when piston which is not moving atop that center is known as clearance volume. Next definition is इफिशिएंसीज. तो इफिशिएंसीज की जब मैं बात करता हूँ तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द फ्री एयर डिलीवर्ड एट द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन इन वन स्ट्रोक. यहाँ से हम समझ सकते हैं कि देखिए जो हम फ्री एयर डिलीवरी की जो बात कर रहे थे वो फ्री एयर डिलीवरी यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं इफिशिएंसी के केस में. तो इफिशिएंसी इट इज़ इन केस हम एटमॉस्फेरिक कंडीशन ले रहे हैं और स्टैंडर्ड कंडीशन ले रहे हैं तो उसमें कितनी हमने एयर को डिलीवर्ड किया है और सॉफ्ट वॉल्यूम वहाँ पर कितना है. दिस इज़ अ रेशियो नॉन एज वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी. नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है आइसोथर्मल इफिशिएंसी. आइसोथर्मल इफिशिएंसी दैट इज द पावर अवेलेबल इन आइसोथर्मल पावर and the indicated power is known as the power available by the shaft. Power available to the shaft known as the indicated power. Mechanical efficiency, it is indicated power and to the shaft brake power. Here is the overall efficiency, isothermal efficiency to the shaft power. These are the some efficiencies which is discussed in this particular. Then basic बात जो हम करेंगे दैट इज द रेसिप्रोकेटिंग. मोस्ट ऑफ द केसेस जो आपका क्वेश्चंस बन सकते हैं वो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर से ही बनेंगे. दिस इज अ बेसिक मोस्ट ऑफ द स्लाइड इन स्लाइड वी हैव डिस्कस, वी हैव रिटन दिस. सो मोस्ट जो कंटेंट जो समझने का है वो है बेसिक जो आपको ड्रॉ डायग्राम दिख रहा है. इसमें जो एयर फिल्टर है, पिस्टन है, इनलेट पोर्ट है, कूलिंग पाइप्स हैं. दिस इज बेसिकली इट इज बेसिकली जो आप जब हम डिस्क्राइब करेंगे तो पिस्टन के केस में आपको जो रेसिप्रोकेटिंग इंजन का है वो पूरा का पूरा आप यहाँ डिस्क्राइब कर सकते हैं. आगे हम वीडियो की हेल्प से आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे हम इसको कर सकते हैं. This is a basic difference between a piston single acting or double acting. In a single acting only the one stroke in power are available, but in the double acting both inner side and outer side can be can be draw this particular. There is it is this one is then only here it is a compressed air are available. Only the single or suction or compression stroke is complete in the upper side. This is known as a single acting. But in the case of double acting, an inner portion is also another portion, this portion is also work as a compression process. For this we have discussed in our next lecture multi-stage. In a multi-stage, number of compressor are connected in a series. This can be number 2 or 3 in numbers. This which is basically used for the higher compression ratio are produced. This is the actual diagram of the compressor. बहुत सारे इक्विपमेंट आपको यहाँ से क्लियरली समझ में आ रहे होंगे, बहुत सारे पार्ट आपको क्लियर समझ में आ रहे होंगे. कोई पार्ट आपको रह जा रहा है, कोई जो पार्ट जो आपको ना समझ में आ रहा हो तो आप हमें डिस्कस कर सकते हैं, आप मेरे से बात कर सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं.
This is one video for explaining the working of the compressor. Basic terminology, basic equipment of the compressor, uh, like connection house, pressure gauge, pressure switch, in inlet filter, motor, cylinder and piston arrangement. This is a basic arrangement of reciprocating type of compressor. Here it is basic. The upper portion of these are the slide. This way known as basic type of compressor and classification of the compressor: reciprocating, rotary, positive displacement, dynamic type of compressor. These are the basic classification which is discussed in earlier. चलिए एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं. This is a piston arrangement, piston and cylinder arrangement. Two valves are provided. One is this inlet valve and outlet valve. बेसिकली फ्रेश एयर आर अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर एंड द आउटर. देखिए इसको पीवी डायग्राम से भी बिल्कुल क्लियरली हमने समझाया हुआ है. यहाँ पर पीवी डायग्राम शो कर रहा है. जैसे जैसे पिस्टन का मूवमेंट हो रहा है पीवी डायग्राम भी आपको देखने को मिल रहा होगा. ये देखिए बॉल्ब की टाइमिंग को देखिए, ध्यान से देखिए बॉल्ब कैसे मूव कर रहे हैं. ये जो आपको एकदम से रेड कलर जो इंडिकेट हो रहा है, दिस मीन्स द ये फ्रेश एयर आर अवेलेबल इन द सिलेंडर. This is a multi-stage type of multi-stage one cylinder one output of the compressor. That means जो compressor का पहले का जो output होगा वो दूसरे के लिए input का काम करेगा. और multi stage का basic purpose जो है वो pressure ratio को बढ़ाने का काम है. जो आपका normal pressure जो है वो pressure 9 उससे अबव होगा तो उसको हम मल्टी स्टेज कंप्रेशर की कैटेगरी में डालते हैं. मल्टी स्टेज में हम देखेंगे. दिस इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ कंप्रेशर, दैट इज द लैप टाइप कंप्रेशर. ये देखिए this is a vent type compressor. these labs these labs are here it is. यहाँ से इनलेट है और एक आउटपुट है जहाँ से हम आपको आउटलेट प्रोवाइड करेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरी स्लाइड पे फोकस करते हैं. ये कुछ फार्मूले हैं जिसकी हेल्प से हम वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी निकाल सकते हैं. कैलकुलेशन फॉर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी. ये स्टैंडर्ड एफिशिएंसी बुक में ये सारा कुछ आपको दिया हुआ है.
जैसे हम बात करते हैं थियोरेटिकल एयर इनटेक, तो पिस्टन का जो डायमीटर है एक्चुअली इन्होंने लिया इस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए हमने लिया हुआ है 100 mm। स्ट्रोक लेंथ जो ली हुई है वो 89 mm ली हुई है। स्पीड जो है वो है आरपीएम में दी हुई है। वो हम कैलकुलेट करेंगे टैकोमीटर से। वॉल्यूम ऑफ थियोरेटिकल एयर दैट इज पाई डी स्क्वायर एल एल इंटू एन इंटू फोर एक्स इंटू 60, where it is pi diameter, L is a length, N is a number of strokes, volumetric efficiency that is the actual volume upon theoretical volume, that is a volumetric efficiency। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। कोई पर्टिकुलर के लिए आइसोथर्मल एफिशिएंसी के लिए जो फार्मूला होगा वो होगा आपका 1.03 VAL P3/P1 डिवाइडेड बाय 75। ये इसके लिए और अच्छे से हम समझने के लिए नीचे वाली जो स्लाइड है उनको वो देखने की कोशिश करते हैं, उसके थ्रू ये बहुत क्लियरली आपको समझ में आने वाला है। चलिए, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर जो है जो हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम एयर एज अ मीडियम ले रहे हैं। एयर एज अ मीडियम दैट मीन्स एयर हमारे लिए वर्किंग फ्लूइड है, और वर्किंग फ्लूइड के केस में, एयर के केस में हम जो परफेक्ट गैस इक्वेशन है वो हम अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज PV इज इक्वल टू MRT, where it is PV upon T is equal to K is a constant। In the polytropic process, PV raised to the power n is equal to K2, it is also a constant। compressor without clearance, and हम जो वर्क डन यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं वो दो तरीके से कर सकते हैं। एक, जहाँ कंप्रेशन क्लियरेंस वॉल्यूम हमने नहीं लिया हुआ है। दूसरा, जहाँ हमने क्लियरेंस वॉल्यूम को एज्यूम किया हुआ है। देखिए, इसके थ्रू हम वर्किंग को समझने की कोशिश करें। डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रेशर, DA द इंडिकेशन स्ट्रोक, इट टेक दैट। देखिए, फर्स्ट जो है हमारा जो इंडक्शन स्ट्रोक है, इन दिस स्ट्रोक द पिस्टन इज मूव D to A, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर D to A। और यहाँ से हम समझने की कोशिश करें तो इंडक्शन इंट्रैक्शन में क्या होगा, जो एयर है, जो फ्रेश एयर है वो एंटर होगी पिस्टन के अंदर, and then second stroke is A to B, that is the compression process। It may be polytropic, it may be isotropic, it may be isothermal। So there are the three conditions: isothermal, adiabatic and polytropic। On the basis of this we have calculating different way, that isothermal is isothermal, adiabatic and polytropic। Next the one is then delivery stroke is then C to D, B to C, in this process the compressed air can be delivered to the delivery valve to the atmosphere or where it is required। नॉर्मली एयर के लिए हम गामा की जो वैल्यू लेते हैं आपको पता होगा, ये 1.4 लेंगे हम। These are the some expression. Firstly, we have considered the polytropic process. When we have a polytropic process, the work done is, for the polytropic process, work done is this। इसको समझने के लिए आपको मैं ऊपर की लाइन को क्लियरली समझना होगा। ये देखिए, इंडिकेटेड वर्क अपॉन साइकिल, दैट इज एरिया ऑफ ए बी सी डी। और ये जो एरिया ऑफ ABCD है, इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करना होगा। देखिए, एरिया ऑफ 1 2 3 4 1, इस एरिया को आपको निकालना है। दैट पर्टिकुलर एरिया इज नॉन एज द एरिया अंडर 1 to 2। अब देखिए, यहाँ से देखिए, समझने की कोशिश करिए, एरिया जो एक और दो के बीच में आ रहा है वो कौन सा एरिया होगा, दिस एरिया। ये जो हम बात कर रहे हैं इस एरिया की बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद एरिया अंडर 2 to 3, तो 2 to 3 इज दिस वन, इज दिस एरिया इज आल्सो नॉन एज दिस एरिया, दिस इज अ रेक्टेंगुलर एरिया। एंड 3 to 4 लास्ट जो बच रहा है वो है 4 to 1 इज एन एरिया, दिस एरिया इज माइनस टू द अंडर दिस पर्टिकुलर, सो दैट हियर इट इज P2 into V2 minus P1 V1 upon n minus 1, n is an polytropic index, plus area P2 V2
जो रेक्टेंगुलर का एरिया लिया हुआ है माइनस जो हमें माइनस करना है जो एरिया एक्सेस है, क्योंकि वो हम एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर के प्रेशर के ऊपर की बात कर रहे हैं, तो दिस एरिया are minus are subtract. Okay, after this we have assuming that p1 v1 is equal to mrt, so that process can be also available. r की वैल्यू जो हम कंसीडर करते हैं वो 0.287 कंसीडर करते हैं किलोजूल पर केजी केल्विन केल्विन। इंडिकेटेड वर्क की निकालने के लिए एन, इसके लिए हम जब सॉल्व करेंगे ये बुक में आपको आसानी से मिल जाएगा, एन अपॉन एन माइनस वन एम आर टी टी वन टी वन, इसको आप कर सकते हैं। इसके अंदर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर में दूसरी जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी आपकी आइसोथर्मल एनालिसिस ऑफ द साइकिल व्हेन वी हैव डिस्कस दैट कंप्रेशर विदाउट क्लियरेंस वॉल्यूम, एंड दैट पर्टिकुलर केस this is the indicated power, more effective efficiency, polytropic power, reciprocating power। अब यहाँ पर देखिए अलग अलग हमने निकाला हुआ है, फिर उसके बाद आइसोथर्मल पावर को अलग अलग निकाला हुआ है। when n is equal to 1 there is a p v is equal to constant, this is a process of isothermal process, so that the work done are available in this particular process। क्लियरेंस वॉल्यूम के साथ इसमें हमने डिफाइन किया हुआ है। रेसिप्रोकेटिंग पंप यहाँ दिखाया हुआ है, ये देखिए अलग अलग हमने स्टेज की परफेक्ट ये इंटरकूलिंग की कंडीशन दी हुई है हमने आपको। इसको आप न्यूमेरिकली फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से न्यूमेरिकल बनने के चांसेस पूरे हैं। अब थ्योरी क्वेश्चन जो आपके यहाँ से बनने वाले हैं वो है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर से। बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर क्या है, तो आपने टरबाइन के केसेस में पढ़ा हुआ है, या हम कहें सिंपल सी बात करें तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर दिस इज दिस पर्टिकुलर एरिया जो आपको शो हो रहा है ये मूव करेगा, और मूव होने से यहाँ पर आपका कंप्रेस्ड एयर बाहर डिलीवर्ड होगी। बेसिक कंपोनेंट यहाँ पर दिए हुए हैं वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये दिख जाएंगे सारे के सारे। डिफ्यूज़र क्या होता है, तो डिफ्यूज़र मैंने आपको थर्ड यूनिट के केस में बताया था। द प्रेशर कैन बी डिक्रीजिंग एंड द velocity is increasing, device known as the pressure is increasing and velocity is decreasing, and device is known as the diffuser। बेसिकली डिफ्यूज़र का जो काम है वो प्रेशर इंक्रीमेंट करना है, और किसके कंपनसेट में, तो वो वेलोसिटी को कंपनसेट करेगा। एक्सियल फ्लो कंप्रेशर है, तो एक्सियल फ्लो कंप्रेशर का भी वीडियो यहाँ से देख सकते हैं।